Hello students, hope all are doing well. Okay, now we will start today's topic. Today's topic is factors affecting requirement of working capital. Already we discussed about the fixed capital. So fixed capital and working capital comes under the decision, that is investment decision. Okay, so what is working capital? So before going into the factors affecting requirement of working capital, we must know what is working capital. So working capital is nothing but the cash invested in the current assets. Okay, cash invested in the current assets, or we can say that portion of amount or portion of capital which is invested in the current asset, that is known as a working capital. Okay, now here working capital means it is categorized into two categories. First one is gross working capital. Gross working capital and net working capital. Okay, so two categories are there. One is gross working capital and another one is net working capital. What is gross working capital? Gross working capital is the amount which is invested in that is the capital invested in the current asset. Okay, so capital invested in the current assets are known as the current asset is known as the gross working capital. Then net working capital. Net working capital is excess of current asset, that is excess of current asset over current liabilities. Okay, excess of net working capital means what? It is excess of current assets over current liabilities. Simply we can say that in accounting term we can say that working capital is equal to current asset less current liabilities. Current asset less current liabilities. Okay, so this is the working capital. So working capital is the portion of amount which is invested into in the current asset. Then the current asset we will know the current asset as a gross working working capital as a gross working capital and net working capital. Gross working capital is total amount invested in the current assets. Then net working capital is excess of current asset over the current liabilities, that is net working capital. Okay, so now here the question arises, why there is a need of working capital? Why there is a need of working capital? Okay, so why there is a need of working capital in the business? Do you know why there is a need of working capital in the business? Already हम लोग fixed assets के बारे में discuss कर चुके हैं. Fixed assets किस लिए हम लोगों को ज़रूरत है? So working capital is needed to continue in the production. Okay, business में production को continue रखना है तो हम लोगों को क्या चाहिए? Working capital is necessary. So continue the production process. Working capital is necessary. Number one. Then number two, payment of daily expenses. Daily expenses जो हम लोग payment करते हैं. We know that for a production process there is the need of machineries and there is the need of other things. Okay, for example हम labor को यहाँ पे रख रहे हैं, so labor को हमको क्या करना होगा? We have to pay payment. Daily wages है तो daily we have to pay the payment. ऐसा भी है. Then other things, sometimes we have to purchase the raw materials and some other expenses are there. Day to day expenses जिसको हम लोग बोलते हैं business में. So to meet the day to day expenses or to pay the daily expenses there is a need of working capital. Fixed asset जो amount होता है, fixed amount वो लेके हम लोग नहीं कर सकते. सो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हम लोगों को चाहिए. ओके, देन अदर थिंग क्या चाहिए? इन केस वी आर हैविंग लम सम वर्किंग कैपिटल, देन कैश डिस्काउंट अवेल करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? वर्किंग कैपिटल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, अदर देन दिस आप देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ें हैं जिससे हम वर्किंग कैपिटल का यूज़ कर सकते हैं. सो मेनली जो है बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए वी मस्ट नीड सम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ओके, सो नाउ वी कम टू द एक्चुअल टॉपिक, factors affecting requirement of working capital. So factors affecting requirement of working capital, जैसे हम लोग fixed capital में देखे थे, what are all the factors which affect the requirement of fixed capital. एक business में fixed capital हमें कितना चाहिए? So this is depend upon the various factors. जो वो factors को mind में रखते हुए ही हम क्या करेंगे? fixed capital हमें कितना चाहिए ये हम देखेंगे. तो इसी तरह working capital में भी some points are there, some factors are there. Depend upon the factors or on the basis of the factors we have to maintain the working capital. Okay, so first we will see the
वर्किंग कैपिटल दैट इज सेम लाइक नेचर ऑफ द बिजनेस, जैसा हम लोग फिक्स्ड एसेट्स में देखे थे नेचर ऑफ बिजनेस। ओके, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखे थे नेचर ऑफ बिजनेस, दैट इज वर्किंग फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, सेम वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। सो नेचर ऑफ द बिजनेस में हम ये देखे थे, वन इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ओके, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सो इसलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देन अनदर वन इज ट्रेडिंग बिजनेस। ओके, टू टाइप ऑफ बिजनेस है हम देखे थे, वन इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अनदर वन इज ट्रेडिंग बिजनेस। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जैसे हम फिक्स्ड कैपिटल में देखे थे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मीन्स हम जानते हैं कि वी हैव टू प्रोड्यूस द थिंग्स, सो मैन्युफैक्चरिंग इट इज द लेंथी प्रोसेस, सो बिकॉज ऑफ द लेंथी प्रोसेस वी नीड मशीनरीज एंड अदर थिंग्स, सो मशीनरीज एंड अदर थिंग्स परचेज करने के लिए डेफिनेटली वी नीड अ ह्यूज अमाउंट। सेम वर्किंग कैपिटल में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम लोगों को करना है, सो डेफिनेटली वहाँ पे लेबर रहेंगे, डे टू डे एक्सपेंसेस वहाँ पे रहेगा, सो ये सारा एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, सो डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हम लोगों को चाहिए। ओके, ह्यूज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ओके, ओके, वंस इफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ह्यूज अमाउंट चाहिए तो वी नो दैट ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होगा, आपका लेस अमाउंट चलेगा। सो ट्रेडिंग बिजनेस में लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ओके, समझ में आया? जैसा हम लोग फिक्स्ड कैपिटल में देखे थे, फिक्स्ड कैपिटल में नेचर ऑफ बिजनेस इट इज डिवाइडेड इनटू टू, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस। सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको फिक्स्ड कैपिटल में देखे थे लार्ज अमाउंट चाहिए बिकॉज टू परचेज द असेट्स एंड अदर थिंग्स। ओके, सो ट्रेडिंग बिजनेस में, ट्रेडिंग में हम लोग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, परचेज करके हम सेल कर रहे हैं, सो इट इज ईजी वन। सो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, सो वहाँ पे हम लोगों को मशीनरीज वगैरह का जरूरत नहीं पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे लेस अमाउंट का जरूरत है। सेम हियर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वर्किंग कैपिटल में भी नेचर ऑफ बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग को हम लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे हम प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, सो प्रोडक्शन प्रोसेस लेंथी प्रोसेस होगा, सो वेरियस एक्सपेंसेस को हम लोगों को मीट करना होगा, सो हमें क्या चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए। ट्रेडिंग बिजनेस, सेम ट्रेडिंग बिजनेस जो है फिनिश्ड गुड्स को लेकर हम सेल कर रहे हैं, सो वहाँ पे लेंथी प्रोसेस नहीं है, सो लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को रन कर सकते हैं। सो दिस इज द नंबर 1 पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस। सेकेंड पॉइंट हम वहाँ पे देखे थे स्केल। ओके, स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन देखे थे, सेम हियर ऑल्सो देयर इज अ स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन में हम देखे थे लार्ज स्केल एंड देन स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल एंड देन स्मॉल स्केल। सेम लार्ज स्केल मीन्स आपको बहुत सारा लेंथी दैट इज प्रोडक्शन जो है बहुत देंगे, आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन नंबर ऑफ अमाउंट दैट इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन बहुत रहेगा, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा देंगे। so when you are going to produce number of units then automatically according to the number you have to spend amount. Okay, so that's why here there is a need of large amount of working capital. So okay, so अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज स्केल रहेगा तो आपको क्या होगा, लार्ज अमाउंट का जरूरत पड़ेगा, स्मॉल स्केल होगा तो आपको लेस अमाउंट का, लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ओके, गॉट इट? सो फर्स्ट पॉइंट हम बोले थे नेचर ऑफ बिजनेस, सेकेंड वन इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, थर्ड हम वहां पे देखे थे so our third point is techniques. Okay, okay, techniques. Okay, so techniques or technology,
टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी। ओके, सो फिक्स्ड कैपिटल में हम देखे थे टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव, ओके, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। सी लेबर इंटेंसिव ऑलरेडी हम बोले थे, लेबर को रख के जब हम काम करेंगे तो हमें क्या नहीं चाहिए, ज़्यादा अमाउंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज लेबर को हम पेमेंट जो है कम देंगे। सो लेबर इंटेंसिव में हमें लेस अमाउंट का ही ज़रूरत पड़ेगा। सेम आपको जैसा वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल में ज़रूरत पड़ा था वैसे ही यहाँ पे लेबर इंटेंसिव आप रख के करेंगे तो आपको क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का आप यूज करेंगे। ओके, देन कैपिटल इंटेंसिव आप यूज कर रहे हैं, सो मशीनरीज एंड अदर थिंग्स आप यूज करें, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द मशीनरीज आपको जो है एक्सपेंसेस स्पेंड करना होगा। सो आपको यहाँ पे क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ओके, इज इट क्लियर? टेक्निक्स क्लियर है आपको? टेक्निक्स जो है दैट इज टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स, टू टेक्निक्स आर देयर, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स आप यूज करेंगे तो लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आपको जरूरत पड़ेगा, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आपका जरूरत पड़ेगा। ओके, देन कम टू द ऑपरेटिंग साइकिल। Length of operating cycle. Okay, so length of operating cycle, यहाँ पर length of operating cycle, so what is operating cycle, ये हमें ध्यान देना होगा। what is operating cycle? Operating cycle means the process starting from the that is purchase of raw material, procurement of raw material. So the process starting from the procurement of raw material till the end of realization of sale. Okay, realization from the sales, that means आप raw material परचेज करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके देन सेल करने तक का जो भी प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज अ ऑपरेटिंग साइकिल। सो नाउ ऑपरेटिंग साइकिल इज डिपेंड अपॉन द items we are producing, or it is depend upon the nature of business, or it is depend upon the production, क्या किस type of product हम produce करेंगे, it's depend upon the type of business. Okay, type of product or types of business. So here operating cycle in case अगर ये long operating cycle हो सकता है, so long operating cycle, और जो ऑपरेटिंग साइकिल जो है लॉन्ग भी हो सकता है या शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल भी हो सकता है। ओके, शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, द पीरियड जो है लॉन्ग पीरियड हो सकता है या शॉर्ट पीरियड हो सकता है। व्हेन द पीरियड इज लॉन्ग, ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई। ओके, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज व्हाट, इट इज हाई, आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल जरूरत पड़ेगा। इन केस शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल, क्योंकि जितना लेंथ आप ले रहे हैं, जितना एक्सेस टाइम आप ले रहे हैं, यू हैव टू पे द एक्सपेंसेस। ओके, सो उतना ही एक्सपेंसेस आपको मीट करना होगा। सो लॉन्ग पीरियड आप लेंगे तो उतना ही आपका बिजनेस में ऑपरेटिंग साइकिल लॉन्ग पीरियड तक रहेगा, सो डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल आपका ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। शॉर्ट पीरियड होगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लो। ओके, सो लो वर्किंग कैपिटल से ही आप क्या कर सकते हैं, दैट इज लेस वर्किंग कैपिटल से ही आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज सीजनल फैक्टर्स। Okay, working capital requirement is affected with the seasonal factors. Okay, so seasonal factors यहाँ पे हम देखेंगे what is season. Season means क्या है, आप जानते हैं seasonal factors means like आप कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट इज द टू सीजन, वन इज पीक सीजन। ओके, सो वन इज नोन एज अ पीक सीजन, देन अनदर वन इज नोन एज अ लीन सीजन। ओके, ओके, लीन सीजन। सो पीक सीजन, सीजन बोलते हैं आप, सीजनल बोलेंगे। ओके, सीजनल। ओके, पीक सीजन को ऑफ सीजन भी आप बोलेंगे, ऑफ सीजन। ओके, ऑफ सीजन। ओके,
Now here the need of capital, working capital requirement is more in case of season, okay, peak season. Then in case of lean season the working capital requirement is less, okay. So आपको समझ में आ रहा है, मैं शॉर्ट कर चुकी हूँ. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, सो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन केस ऑफ पीक सीजन इज मोर देन रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन केस ऑफ लीन सीजन इज लेस. हाउ? सी, when there is a season, okay, so for example this is the rainy season, here this is a rainy season, okay. So when there is a rainy season definitely क्या है, सभी को क्या चाहिए, रेनकोट चाहिए, अम्ब्रेलास चाहिए. So this time the peak season में क्या होगा, जो है वो जो प्रोडक्शन होगा वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे. So large amount में, that is demand of the product क्या होगा, इंक्रीज होगा. So when there is a increase in the demand of the product then ऑटोमेटिकली सप्लाई भी आपको उतना ही करना होगा. सो ऑटोमेटिकली क्या है कि डिमांड इंक्रीज होगा, सो प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है आपको इंक्रीज हो जाएगा. सो व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन लार्ज अमाउंट और लार्ज क्वांटिटी में आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं देन ऑटोमेटिकली आपको वर्किंग कैपिटल क्या होगा, ज़्यादा होगा. और एक एग्जाम्पल देती हूँ, दिस इज द सीजन, दैट इज द पेंडेमिक की वजह से ये सीजन है, आपको क्या ज़्यादा जरूरत पड़ रहा है, मास्क आपको जरूरत पड़ रहा है जाना, देन सैनिटाइजर. सो दिस इज द पीक सीजन, आप जो है सैनिटाइजर एंड मास्क क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर, लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में आपको प्रोड्यूस करना होगा, जिसके वजह से आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा जरूरत पड़ेगा. बट इन केस ऑफ लीन सीजन आपको जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि रेनी सीजन, जब रेनी सीजन खत्म हो जाएगा देन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सीजन जब शुरू हो जाएगा देयर इज नो नीड ऑफ रेनकोट एंड अदर थिंग्स, ओके. सो उस टाइम में उस प्रोडक्ट जब हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर थिंग्स, ओके, वेस्टेज ऑफ कॉस्ट एंड अदर थिंग्स. सो वहाँ पे हम लोगों को कॉस्ट जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जिसके वजह से वर्किंग कैपिटल हम क्या कर सकते हैं, लेस वर्किंग कैपिटल से ही हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ओके. सो गॉट इट. पीक सीजन में आपको वर्किंग कैपिटल क्या होगा, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, एंड लीन सीजन दैट इज ऑफ सीजन में वर्किंग कैपिटल आपका लेस ज़रूरत पड़ेगा, ओके. सो इट क्लियर, ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशन इज ऑलरेडी ओवर. नेक्स्ट जो है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन. Okay, business cycle fluctuation. What is business cycle fluctuation? Okay, so business cycle fluctuation, business में जो है fall होना, business down होना या business up होना, that is known as a business cycle fluctuation. So here business cycle fluctuation को हम ऐसा divide करेंगे, boom period, then one is boom period, another one is depression period. ओके, बूम पीरियड एंड डिप्रेशन पीरियड. ऑलरेडी मैंने बताई थी बूम पीरियड एंड डिप्रेशन पीरियड, दैट इज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट जो है, आपको ये लाइन है तो ये स्टेबल रहेगा. सो ये स्टेबल लाइन है. देन बूम पीरियड जो है आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे, ओके. सो दिस इज नोन एज अ बूम पीरियड. जब आपको इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन, जब डिमांड आपका इंक्रीज होगा, दिस इज नोन एज अ बूम पीरियड. व्हेन डिमांड इज डिक्रीजिंग, जब डिमांड आपका डिक्रीज हो जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, देन इट इज नोन एज अ डिप्रेशन पीरियड, ओके. सो इट इज नोन एज अ डिप्रेशन पीरियड, ओके. ओके, इट इज डिप्रेशन पीरियड. समझ में आ रहा है. सो प्रोडक्शन का प्रोडक्ट का डिमांड जब ज़्यादा रहेगा देन या मार्केट में जो है आपका बिजनेस जो है ज़्यादा हो रहा है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है. सो बिकॉज ऑफ नेम एंड फेम आपका बिजनेस जो है बूम पीरियड में है, दैट इज आपका एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग सिचुएशन, ओके, एवरीथिंग इज इन इंक्रीजिंग सिचुएशन, दैट इज नोन एज अ बूम पीरियड. देन अगर बूम नहीं है, डिक्रीजिंग सिचुएशन है, दैट इज नोन एज अ डिप्रेशन पीरियड, ओके. नाउ बूम पीरियड होगा तो आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज मोर, ओके. सो बूम पीरियड में रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मोर, देन डिप्रेशन पीरियड में रिक्वायरमेंट ऑफ
वर्किंग कैपिटल इज लेस। ओके, समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे मैंने बताई थी बूम पीरियड मीन्स इंक्रीजिंग लेवल में है, सो डेफिनेटली आप जो है मार्केट में आप अच्छे पोजीशन में है, इंक्रीजिंग पोजीशन में है, तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होगा। सो ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होगा तो यू हैव टू प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। सो लार्ज नंबर में आपको प्रोड्यूस करना होगा तो डेफिनेटली आपको एक्सेस अमाउंट का जरूरत पड़ेगा। डिप्रेशन पीरियड हो जाएगा तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिमांड नहीं रहेगा। सो व्हेन देयर इज नो डिमांड टू योर प्रोडक्ट या आपका बिजनेस साइकिल ही डिप्रेशन में जा रहा है, देन ऑटोमेटिकली वहां पे आपको इतना सब कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो एक्सपेंसेस जहां पे कम रहेगा तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। सो लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से ही आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सीजनल फैक्टर एंड बिजनेस फ्लक्चुएशन। ओके, फ्लक्चुएशन और बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। ओके, okay, next point is credit avail. Okay, okay, credit avail बिजनेस में क्रेडिट अवेल भी है, क्रेडिट अलाउड भी है। ओके, सो दोनों पॉइंट को एक साथ समझाते हैं, क्रेडिट अवेल एंड क्रेडिट अलाउड। ओके, ओके, नाउ क्रेडिट अवेल। ओके, ओके, क्रेडिट आप अवेल कर रहे हैं। सो क्रेडिट अवेल कर रहे हैं मीन्स इट इज डिपेंड अपॉन द पीरियड। ओके, सो इट डिपेंड अपॉन द पीरियड और टाइम गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। ओके, सो हम जब प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स एंड अदर थिंग्स परचेज कर रहे हैं, सो हमको कितना टाइम मिल रहा है, दैट इज क्रेडिट जो है पीरियड जो है कितना मिल रहा है, दैट इज हम जो है वापस जो करेंगे वो कितना टाइम में हम जो है वापस करें। सो इन केस वी आर गेटिंग लॉन्गर पीरियड। ओके, लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर पीरियड मिल रहा है या शॉर्ट पीरियड आपको मिल रहा है, ये हमें देखना होगा। ओके, लॉन्गर पीरियड या शॉर्ट पीरियड। ओके, समझ में आ रहा है आपको? क्रेडिट अवेल, इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस एंड आई एम परचेजिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम माय सप्लायर्स एंड हियर आई हैव टू सी दैट वेदर माय सप्लायर आर गिविंग क्रेडिट और नॉट। इफ दे आर गिविंग क्रेडिट, व्हाट इज द टाइम पीरियड? ओके, सो इफ दे आर गिविंग लॉन्ग टाइम पीरियड टू पे द अमाउंट, देन हम लोगों को क्या चाहिए, लेस अमाउंट का जरूरत पड़ेगा। ओके, लेस अमाउंट का जरूरत पड़ेगा। इन केस दे आर गिविंग शॉर्ट पीरियड, देन ऑटोमेटिकली हम लोगों को मोर अमाउंट का जरूरत पड़ेगा। ओके, सो व्हाई, for example, if I am purchasing raw material from my suppliers as credit in credit, then automatically क्या है, मुझे longer period दे रहा है। Say for example, I have given 1 year, okay, 1 year के बाद 1 year time period और छोड़ दीजिए 6 months का time period ले लीजिए। So after 6 months I have to pay the pay the amount. Okay, so it is a longer period. 6 months is longer period for me. So 6 month मेरे को दे रहे हैं। So working capital वहाँ पे मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि working capital किस लिए हम पहले ही बोले, करंट लायबिलिटीज जो भी होगा ये करंट लायबिलिटीज को सेटल करना होगा, पेमेंट एक्सपेंसेस जो भी मुझे देना होगा। सो इन केस मुझे लॉन्गर पीरियड मिल रहा है, देन वहाँ पे मेरे को उतना अर्जेंट नहीं है पेमेंट करने के लिए। सो वहाँ पे मुझे लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से ही हम क्या करेंगे, काम कर सकती है। ओके, बट इन केस ऑफ शॉर्ट पीरियड, मैं सप्लायर मुझे जो है शॉर्ट पीरियड दे रहा है, दैट इज विद इन 2 months के अंदर आई हैव टू पे द अमाउंट, ऐसा मुझे दे रहा है, टाइम पीरियड इज शॉर्ट दे रहे हैं, देन ऑटोमेटिकली मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। बिकॉज विद इन 2 months आई डोंट नो कि 2 months के अंदर मेरा प्रोडक्शन रॉ मटेरियल जो मैं परचेस करी हूँ ये प्रोडक्शन प्रोसेस में होके, दैट इज फिनिश्ड गुड होके ये सेल हो जाएगा या उससे मुझे कैश मिल जाएगा, ये मैं नहीं बोल सकती हूँ। सो इसलिए मुझे रिक्वायर्ड एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल रखना जरूरी होगा। सो दैट टाइम मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्रेडिट अवेल मीन्स एज अ बिजनेस पर्सन मुझे अपना सप्लायर से कितना टाइम पीरियड मिल रहा है क्रेडिट रीपे करने के लिए। ओके, लायबिलिटीज जो मेरा है ये लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए कितना टाइम पीरियड मुझे मिल रहा है। इफ लॉन्गर पीरियड आई विल गेट लॉन्गर पीरियड, देन ऑटोमेटिकली लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से मैं काम कर सकती हूँ। शॉर्टर पीरियड होगा, देन मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्रेडिट अलाउड।
दोनों में क्रेडिट आ रहा है बट दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। हियर क्रेडिट अलाउड मीन्स एज अ बिजनेस पर्सन आई हैव टू अलाउ क्रेडिट टू माय कस्टमर्स। ओके, सो मुझे सप्लायर से टाइम पीरियड मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है, दैट इज क्रेडिट अवाइल्ड। मैं अगर अपना कस्टमर्स को क्रेडिट में दे रही हूँ, इट इज क्रेडिट अलाउड। ओके, सो हियर आल्सो आई हैव टू सी कितना टाइम पीरियड मैं दे रही हूँ, क्रेडिट अलाउ कर रही हूँ या क्रेडिट जो है अलाउ कर रही है, तो कैसा मैं क्रेडिट अलाउ कर रही हूँ। सो यहाँ पे लिबरल करके हम लेते हैं, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, liberal credit policy and a strict credit policy. See, there is लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कस्टमर्स को जो है क्रेडिट में दे रही हूँ बट देयर इज नो स्ट्रिक्ट पॉलिसी, व्हेन एवर दे कैन गिव, ओके आप जब देना चाहते हैं दे दीजिए। ऐसा अगर मैं अपना बिजनेस में करूँगी सो डेफिनेटली क्या है, मेरा जितना भी अमाउंट जो भी मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुकी हूँ सो वो अमाउंट क्या हो गया, एज अ गुड्स बाहर चला गया है। नाउ मेरे को कब मिलेगा अमाउंट, आई डोंट नो, व्हेन द पर्सन माय कस्टमर इज गोइंग टू गिव द अमाउंट, सो एट दैट टाइम सो क्या होगा, मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि मुझे और भी काम करना है, सो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। बट इफ़ आई एम यूजिंग द स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, ओके स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है, इफ़ आई एम गिविंग क्रेडिट देन ऑटोमेटिकली दे हैव टू पे, दे हैव टू सेटल द क्रेडिट विद इन 2 months। ओके, जो भी पेमेंट होगा वो पेमेंट को 2 months के अंदर सेटल करना है या 3 months के अंदर सेटल करना है। ऐसा मैं स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो कर रही हूँ, देन देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट, सो लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से मैं अपना बिजनेस को रन कर सकती हूँ। जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उसको मैं स्मूथली रन कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है आपको? लिबरल क्रेडिट पॉलिसी होगा तो मोर वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि लिबरल क्रेडिट पॉलिसी मीन्स देयर इज नो स्ट्रिक्ट पॉलिसी, देयर इज नो टाइम पीरियड। कभी भी मैं अगर अपना कस्टमर्स को क्रेडिट दे रही हूँ, क्रेडिट में दे रही हूँ, देन ऑटोमेटिकली जब चाहे वो ला कर दे सकते हैं। ऐसा एक सिचुएशन में मुझे मोर वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा बाकी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। इफ आई एम फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी देन क्या कर सकते हैं, लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से ही मैं काम कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रॉ मटेरियल। ओके, ओके अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल में हम यहाँ पे देखते हैं अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, ओके इजीली मुझे रॉ मटेरियल मिल जाता है तो मुझे लो वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत पड़ेगा। ओके, लो वर्किंग कैपिटल, ओके लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इजीली अवेलेबल okay, then high working capital, high working capital, availability of raw material is not easy, okay, is not easy. Okay, so availability of raw material is one of the important one. रॉ मटेरियल मुझे इजीली मिल जाता है देन ऑटोमेटिकली लो वर्किंग कैपिटल से मैं काम चला सकती हूँ। अगर रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल ना, इट इज़ नॉट अवेलेबल इजीली देन ऑटोमेटिकली मुझे हाई वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल और कहीं से मैं ला रही हूँ, डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज देयर एंड इफ इट इज़ अ स्कैर्स रॉ मटेरियल देन ऑटोमेटिकली आई हैव टू स्टोर द रॉ मटेरियल, सो स्टोरेज कॉस्ट भी मुझे पड़ेगा।
सो ऑटोमेटिकली इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल यूज करना होगा. सो ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ेगा इफ द रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल विथ मी और इट इज नॉट गोइंग टू गेट easily because the location is not that is location is not within the availability of raw material. Okay, so अगर ऐसा सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा. बट ईजीली अवेलेबल है रॉ मटेरियल, जहाँ पे मेरा लोकेशन है वहीं पे मुझे रॉ मटेरियल ईजीली मिल जाता है, देन स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है. सो ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल क्या होगा, लो वर्किंग कैपिटल से ही मैं काम कर सकती हूँ. ओके, सो this is the factors affecting requirement of working capital. Other than this, operating efficiency and other things are there. So जो important है वो मैं बता चुकी हूँ, factors affecting requirement of working capital. So I hope you understood the points what I have taught you. Okay student, we will meet in the next class.